1977 में हुआ था, आज 28 वर्षों की एक पूर्ण स्त्री है। और जैसा सभी स्त्रियों के साथ होता है, यह परम सुंदरी है, गुणवंती है एवं चिर युवा। वैसे बखान करने जैसा हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का बंधन है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। 150 की जो बैच थी, इसमें लगभग 50 सहपाठी यहीं पर हैं, भोपाल या उसके आसपास ही जमे हैं और खूब जमे हैं। और जो यहाँ से बाहर है वे भी अपने क्षेत्रों में इस मातृतुल्य संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। मानव नीति समय के साथ चलने की है। तो आइए देखें कि समय अपने क्रूर हाथों से हमारे शरीर की क्या दुर्गति करता है। और ये सिर्फ मेरी बैच के लिए ही नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सबके ऊपर खरा उतरता है। जब हम MD या MS करने के बाद जाते हैं और 25 साल बाद मिलते हैं, तो देखिए सीन कैसा दिखता है कि कुछ का रूप लावण्य बढ़ा तो कुछ के सौंदर्य को लगा ग्रहण। कुछ जो धूल मिट्टी में पले बढ़े, उन्हें धूप भी नहीं होती सहन। कुछ के भरे पूरे काले सिर थे, कंगा था आवश्यक अभिन्न अंग। छिल न जाए उनका गंजा सिर, या भय सताए बुने आजीवन। कुछ कृशकाय इतने थे दुबले कि उछलते उड़ते चलते थे, क्या पूछे उनके पैरों से जो गज भार उनका अब करते वहन। कुछ खेला करते थे दिलों से, अजीत सलूजा, कुछ खेला करते थे दिलों से, दिलों की बातें जान लेते थे। अनियमित सी चलती है उनके ही अब दिल की धड़कन। कुछ अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अदृश्य को भी देख लेते थे। दृष्टि दोष कुछ ऐसा हुआ कि चढ़ा ऐनक अब उनके नयन। कई दुस्साहसी निडर युवा जो बालाओं पर ताने कसते थे, फिर से सुनिए इसे। कुछ दुस्साहसी निडर युवा जो बालाओं पर ताने कसते थे, उम्र के इस पड़ाव में वे आदर से उन्हें अब कहते बहन। समय का षड्यंत्र, फेर समय का ही माया जाल। चिर युवा जो समझे स्वयं को, डरा रहा उनको दर्पण। तो इस कायाकल्प के उपरांत भी बहुत कुछ इस बैच में ऐसा था जो ठहरा है और रुका हुआ है और जिस पर हमें गर्व है। तो वो देखिए क्या चीज है जिस पर जो हमारे अचीवमेंट है एक्चुअल, कि सरल सहज रिश्ते आपस में मिलने में एक अपनापन और सद्भावनापूर्ण विचार मन में, संवादों में एक भोलापन, निश्चलता बसी हृदय में सबके, नयन भरा एक नव जीवन और गर्व हमें अपने सहपाठियों पर, अटूट हमारे स्नेह बनने। Presenting batch 1978, of which our batch continues to be a very female-dominant, women's-led batch. I think I'm the first one in all these years to come in escorted and the sole female coordinator of a batch. The female dominance continues. If you see, my batch is represented by the girls, as usual, sitting in the front, and the boys somewhere scattered behind. I request all of them to get up so at least I can see whether they are there or not. Our batch has been lucky. We have seen not only the silver jubilee of this medical college, but today we are taking part in the golden jubilee also. We were in the third year, and as you know, third years have got not too much studies to do. So we actively were involved in the silver jubilee functions of 1980. Our association does this of over 27 years. And my own personal association with this medical college by family ties is of over 40 years. We've honored and respected, our honored and respected teachers have been there in the morning. I'll remind you of them. We had Dr. Bhargav, both Dr. R.P. Bhargav, Dr. R.K. Bhargav, Dr. Santosh Singh, Sir sitting here, Dr. Yashikar, Dr. K.N. Sharma, all of them have been our respected teachers, and we are trying our best to emulate them in our daily activities. About my batchmates, well, many of our batchmates have become specialists, super specialists, and few of our colleagues have settled abroad. They've been renowned for their academic contributions in the medical field. Many of my
nursing homes in Bhopal, of which the first ones to establish themselves as a couple and also the first ones to start a nursing home are Dr. Abha and Shrikant Jain. They were the first official couple from batch of 1978. They are also the first to have a daughter entering into the medical field. Their daughter has just joined medical college at Manipal. Then we have Parul Nursing Home run by Dr. Pankaj. We have Nisha Nursing Home run by Dr. Nasreen Ali. Akshay by Dr. Anil Gupta and Deepak Chaturvedi. And we have also Sudhiti Nursing Home by Dr. Anil Garg. I hope I'm not missing out any more nursing homes in Bhopal. In the medical college, Bhopal itself has got two of our batchmates, that is Dr. Adwan in forensic medicine and myself in obstetrics and gynae. At Indore, we've got Dr. Ved Prakash Pandey, and we also have Dr. Krishna Kumar Kavre, the most educated in our batch. He's a DM in neurology. I'm not very sure exactly which medical college he's in now. Many of our batchmates have settled abroad. We've got Dr. Oja, Dr. Nasreen, Dr. Nadkarni, Jayashri Nadkarni, Dr. Nirmala Jain, Dr. Sanjay Sino, Dr. Savita Yadav, Sanjay Bhatkar, Dr. Sanjeev Bhattacharya, Alok Gaur, Atul Gaur. My class today is represented by about 10 of us, a very small crowd over here, but that is probably because we've just finished with our Silver Jubilee. Another of my batchmates sitting here is Dr. Sudha Jain. We all know now why she used to go for medicine evening rounds so frequently. And there is also Dr. Madhulika and the rest of the boys. Thank you. Thank you, Dr. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1979 बैच के सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। डॉक्टर अभिमन्यु चंद्र इंदौर से आए हैं, बाकी रवि कामले हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम गोपी त्रिपाठी। सबसे ज़्यादा फख्र की बात तो हमारे बैच को ये कि हम लोग जब फर्स्ट टॉप में थे तो सिल्वर जुबली मनी थी इस कॉलेज की, और जब हम लोग अभी जब डॉक्टर बन चुके हैं तो गोल्डन जुबली मना रहे हैं, और अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने अपने बैच की सिल्वर जुबली मनाई थी। सबसे ज़्यादा फख्र करने की बात है कि 132 लोगों के बैच में होने के बावजूद 117 लोगों ने हमारे बैच में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स या कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन किया है। भोपाल के अंदर जितने हॉस्पिटल्स इस वक्त रन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे बैच के डॉक्टर्स की है, जिनके मैं नाम बोलना चाहूंगा। डॉक्टर नीरज कुमार आयुष्मान हॉस्पिटल, डॉक्टर जेपी पालीवाल हॉस्पिटल, राजेश कानून आरके हॉस्पिटल, सरिता कालवा रचना गुप्ता अक्षय हॉस्पिटल, शेखर एंड साधना श्रीवास्तव शेखर हॉस्पिटल, उमेश शारदा हॉस्पिटल, जेवाई शाह एनएमआर हॉस्पिटल, नरेंद्र सिंह शुभम हॉस्पिटल, संजय मेहरोत्रा सरल हॉस्पिटल, दिनेश उपाध्याय आरोग्य हॉस्पिटल, जसबीर कथोरिया तृप्ति हॉस्पिटल, मनीषा खरे मनीषा हॉस्पिटल, प्रशांत कुंदर की सारथी हॉस्पिटल एंड माइसेल्फ डॉक्टर राजन एनटीआर हॉस्पिटल। इसके अलावा जबलपुर में डॉक्टर नलिनी सिंह न्यू बॉम्बे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अर्चना कथोरिया जबलपुर में कैथ लैब रन कर रही है। इंदौर में डॉक्टर नीरा गोयल रिकवरी हॉस्पिटल, डॉक्टर शुभांगी महाशब्दे हॉस्पिटल। इसके अलावा अम्बाला में डॉक्टर कपिल हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल, मुजफ्फरनगर में डॉक्टर अनिल सिंह श्यामल हॉस्पिटल। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे बैच में सबसे ज्यादा नर्सिंग होम इस टाइम भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश में जो है। इसके बाद जो यूएसए और अब्रॉड में जो लोग हैं, यूएसए और कनाडा में ये हैं डॉक्टर सीमा शर्मा, डॉक्टर बसंती, डॉक्टर शोभारा मन्ना, डॉक्टर रिजवाना हुसैन, डॉक्टर रजनीकांत बी पटेल, डॉक्टर संजय मित्तल, डॉक्टर संजय जबर, डॉक्टर सुजात आर्या, डॉक्टर शाहीन सुल्तान। यूके के अंदर है डॉक्टर आनंद गोरे, डॉक्टर अंजलि देशपांडे, डॉक्टर राजीव बंडूला। यूएई के अंदर है डॉक्टर कमलेश पंजाबी, डॉक्टर राजन चेरियन, और सिंगापुर में डॉक्टर कमल वर्मा। इसके अलावा विदेशी छात्र जो हमारे साथ थे आज वो भी अपने अपने देशों में तरक्की पर हैं। डॉक्टर इंदिरा सर, डॉक्टर दारुणी पडुनकिट, डॉक्टर नवीन कुमार आनंद, डॉक्टर सतानंद हेमू। इसके अलावा टीचिंग जॉब में भी शायद हमारे बैच के सबसे ज्यादा टीचर्स हैं, जिनके नाम हैं डॉक्टर संजय दीवान प्रोफेसर वर्धा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर संजय मित्तल कनाडा में प्रोफेसर, डॉक्टर रचना गुप्ता भोपाल में ऑप्टो में जीएमसी में, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, डॉक्टर रमाशंकर गुप्ता सर्जरी में जीएमसी भोपाल, डॉक्टर परिश्रमा त्रिवेदी असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी ऑन्कोलॉजी अहमदाबाद में, डॉक्टर एस रेणुका असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी बेंगलोर में। इसके अलावा जो बात चलती है कि हमारे दोस्तों ने सुपर स्पेशलाइजेशन भी करके आज हमारे शहर का और बाहर का नाम रोशन हो रहा है,
डॉक्टर विवेक कानेर, चीफ कार्डियक सर्जन, BMHRC भोपाल, डॉक्टर अंजलि पटवर्धन, UK, डॉक्टर प्रशांत कुंदगी, फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर संजय मित्तल, ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर शालिनी शंकर, पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर आनंद गोरे, फेमस एनेस्थेसिस्ट इन UK। आज हम उन साथियों के बारे में भी याद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें परमपिता परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है, और हमारे बैच की मॉर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे लोगों की ऊपर भी जरूरत होती है। उनके नाम डॉक्टर NK चिमड़िया, डॉक्टर अरुण यादव, डॉक्टर आनंद भुई, डॉक्टर अनूप उपाध्याय, डॉक्टर जसपाल उबेजा, डॉक्टर सुषमा सोनी। इस तरह हमारे बैच ने 7 लोगों को खोया है। इस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे बैच के लोगों ने मिलिट्री से लेके जेल तक कब्जा कर रखा है। मिलिट्री में है डॉक्टर HS बिंद्रा, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, रंजना अमर तिहाड़ जेल में है, और डॉक्टर आनंद अतुलकर सेंट्रल जेल में। एक मिनट सर, हमारे बैच में OP त्रिपाठी जी भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों की क्लैपिंग चाहूंगा, हमारे बैच में एक डॉक्टर दोस्त हैं हमारे, रमेश माधव, जो पिछले साल हमारे सिल्वर जुबली बैच को ऑर्गेनाइजर भी थे और इस बैच में भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। वो यहाँ की जितनी भी अपने IMA, PMPA सभी के ऊपर की जितनी पोस्टें सब पे उन्होंने ऑनर किया है। इसके बाद डॉक्टर KC रायकबार जो है हमारे बैच के, जो अभी भी गोल्ड मेडल जीतते हैं नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप जितनी भी होती हैं। शायद भारत में ऐसा कोई भी बैच नहीं होगा जिसके बैच के व्यक्ति ने अभी भी इस साल भी 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग सब एक जबरदस्त क्लैपिंग दें। सेकंड, ऑल इंडिया एथलेटिक एक्वेटिक चैंपियनशिप जो राजकोट में हुई थी उसमें, और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो हुई थी अभी हैदराबाद में। इस तरह हमें अपने बैच के ऊपर बहुत फख्र है। और सामाजिक चेतना को जगाने में परिकल्पना के नाम से डॉक्टर JP पालीवाल भी काफी आगे काम कर रहे हैं। इस तरह मुझे फख्र है कि मैं अपने 1979 बैच से हूँ और अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हूँ तो उन लोगों ने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। और भोपाल में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे बैच के 43। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबके हॉस्पिटल्स खुले हैं, सबने सोशल लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे शिव खेरा ने कहा है कि सक्सेसफुल पर्सन 18 तारीख आपके पास है ना? डिफरेंट थिंग। तो 18 तारीख को आप और अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। जी जी जी। वी अंडरस्टैंड 4 मिनट बहुत कम होता है, लेकिन आपके पास 18 तारीख आप पूरा दिन है, आप उस दिन आज का सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो एक मोनोटोनी को तोड़ते हुए आपने 97 बैचेस तक कवर करना है। जी जी ठीक है। तो थोड़ा सा उसको डिफरेंट करते हुए मैं फिर कविता के माध्यम से आप सबको हमारे मैच की अचीवमेंट्स बताना चाहता हूँ। इरशाद, कविता तेरे रजत जयंती का वर्ष 1980 इस प्रांगण में था उल्लास बिखेरे। उसी वर्ष में हुआ पदार्पण, आंखों में थे सपने बहु तेरे। वर्षा ऋतु की वह अगस्त मास की भीनी सी अंगड़ाई और स्मृति पटल पर अंकित है अब भी वो पहली बारिश की अलसाई। सुभाष घई ने मानो कर्ज का गाना हमारे लिए ही बनाया था। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, जलवा सब तरफ छाया था। कॉलेज की सीढ़ियां और गांधी जी की मूर्ति का पहला नजारा अजब था। सीनियर्स की बैठी खौफनाक कतार, रैंकिंग का डर भी गजब था। सफेद पोशाक, मेडिकल एंथम, दूसरा बटन और GRA करारा झटका था, जैसे किसी ने सुहाने सपने में जगाकर नीचे ला पटका था। रैंकिंग में शोले के डायलॉग सुने और सुनाए जाते थे। ओ कालिया, ओ धोलिया के नाम से हम लोग बुलाए जाते थे। एक सीनियर मिले, कहने लगे, क्यों बसंती से शादी करोगे? हमने खुश होकर कहा हाँ। तो कहा, तो बोले बेटा मरोगे। अगर तुम बसंती से शादी करोगे तो साले क्या मैं धन्नो से शादी करूंगा? चलो आप टंकी पर चढ़ जाओ और अपने क्लास की ब्यूटी लिस्ट गिनाओ और कसम खाकर कहो कि इनमें से किसी से शादी किए बगैर ही मरूंगा। राम राम करके उन छापड़ों फटे हुए कान के पर्दों से छूटे। बाकी के बचे अरमा फिजियो के लैब और डिसेक्शन हॉल में टूटे। डॉक्टर जैन की चढ़ी त्रिकुटियां, MP सिंह के दोनों हाथों से बनाई ड्राइंग, अशरफ जहां मैडम के लफ्जों को चबा चबा के बोलना, CP शर्मा सर का समझाना, भार्गव सर के नोट्स, राव सर की थ्योरी और हमारे तिरजल साहब को लड़कियों को प्रैक्टिकल करवाना, ये सब मानव जिंदगी का हिस्सा था।
तुम्हारी किताबों ने कर दी थी गमगीन जिंदगी। लग गए बॉस, शब्द का अर्थ समझ में आया और बढ़ गई खुदा की बंदगी। सैफी साहब और मैडम कांदरे को देखकर ऊपर वाला याद आता था। हॉस्टल के कमरों में बने मंदिरों में राम जी का नंबर उनके बाद आता था। 3 दिसंबर 1984 की रात, जिसकी स्याही अब तक नहीं सूखी है। तबाही का मंजर ऐसा जैसे मौत भी लंबे अरसे से भूखी है। उस हाल में आधी समझ से जिससे जैसा बन पड़ा किया, गर्व है हमें कि इस प्रांगण में हर छात्र ने पूरा हमारा साथ दिया। फिर आया MBBS का अंतिम वर्ष, लगा एवरेस्ट की आखिरी चढ़ाई है। हमें क्या घुमा था कि और ऊंची चोटियां हैं और आगे भी पढ़ाई है। NPM, MHK, GVR, JKR, OPS, HST, YS के हाथों में था खुदों को तराशने का काम। बखूबी निभाया है दिग्गजों ने, तभी तो रोशन है GMC का नाम। इस पड़ाव के बाद सफर में सब अपना लक्ष्य और मुकाम ढूंढते रहे। कुछ को तलाश थी खास रास्तों की, कुछ लोग अपनी मंजिल आम ढूंढते रहे। मैं जिनका नाम लूं, अगर वो यहाँ हो तो खड़े हो जाए प्लीज, एक एक करके। आनंद मोहन, श्रीकांत सौरभ, राजीव गुप्ता, सुनील पंडित, श्याम अग्रवाल, सभी ने सुपर स्पेशलिटी की डिग्री पाई। आरती, प्लीज आरती, दीपिका, अनिल दरबारी, अश्विनी सियाल, नॉट हियर, JD पाटिल, नॉट हियर, सुजाता, अजहर, अखिलेश और रीता ने विदेशों में अपनी खास जगह बनाई। बिरबुराम चौधरी ने राजनीति में अपनी किस्मत तो आजमाई, लेकिन राजेंद्र गुप्ता, राजीव गुप्ता, कविता कुमार, गीता रानी गुप्ता और विजय रामरानी कर रहे हैं काम महान। इस प्रांगण के गुरुजनों का ऋण उतार रहे हैं करके शिक्षादान। राकेश, राजीव, सुभाष, नरेंद्र, मुकुंद, सुष्मिता, अरुणा, कमलेश, नाम बहुत दे रहे हैं, मगर सबकी पहचान अलग है इनका नाम। रजनीश बढ़िया और गीता रानी गुप्ता है अपना सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत और एक जादू की चप्पी। और एक बात जो दिल से वो यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे पूरे जो बैच के लोग यहाँ हैं या जो नहीं हैं, सबकी तरफ से शत शत प्रणाम करता हूँ इस महान महाविद्यालय की माटी को, हमारे आदरणीय गुरुजनों को। उन्हीं की बदौलत हम सभी जहाँ हैं अच्छे हैं, संपन्न हैं, देश और विदेश की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नरेंद्र कुमार की लिखी हुई। This is our batch, and together we share the moments of glory, happiness, and grief as students of this college. Next, please. During our stay in this college, certain contemporary events shaped our future, and certain events always leave indelible imprints on us. And we had our share of many highs and lows. The era of live transmission, as we see now, had just taken shape at that time, and we enjoyed being part of Delhi 1982 Asian Games and the famous Prudential Cricket Cup World Cup victory in 1983. And on the flip side, during 1984, we came face to face with the assassination of Mrs. Indira Gandhi, followed by the riots, which moved us deeply. Then next, when we were going for examination of our second professionals, in between, we had this major industrial disaster, which was the Bhopal gas tragedy, and it shattered us. Our batch also contributed along with the seniors and juniors in the service of people affected by gas. After 15 years, as you can see in this photograph, we were carrying a different kind of load. There are kids on everybody's lap almost, and most of us had lost the bachelorhood. In our batch, the gold medal was awarded jointly to Dr. Atul Kataria and Dr. Iqbal Ansari. I'm sorry I'm confusing their name, they are so close together still.
Atul and Iqbal were really good students at that time. And you can see in one of the photographs the Benazir ground, which is showing the closing ceremony, and this shows that this brings forth the memory of the sports events that were held at that time. Though these sports events are now not held at Benazir ground, and we really miss it a lot. The fun, the championship trophies, and by the time the closing ceremony was there, you can see in this photograph, it's the closing ceremony, very few people are left. Also during this time, a high point in the third year was the NSS camp. All of us went to that camp and learned the art of teamwork and brotherhood. As a side business, probably some people found pairs and that resulted in matrimonial alliances for some. Next. One of the photographs shows the election scene. As you know, nowadays the elections are banned. They are on, the students' union is appointed on meritorious grounds. And the historical Falta and non-Falta elections, I don't know, the present generation must not know anything about it. At that time, two panels existed as Falta and non-Falta. Next. Through the trials and tribulations, nobody can forget in our batch, when as first years and day scholars we entered the coacher bus, we were dreading inside that we will be mentally ragged. The physical ragging was much more easy to bear. थोड़ी देर बाद छोड़ देते थे, लेकिन mental ragging used to continue for long periods and was really taxing. The general ragging GR at the rooftop of B block, we still remember that, and our batch also probably paid back to the juniors the same currency. That was a golden experience nobody can forget of the hostel life. Next, that's a temple of learning where we learned the art of medicine. We are grateful to our teachers. Some of us, next please. Few of us became super specialists. Dr. Saxena, Dr. Ratnani, Dr. Trinata Agarwal, Dr. Sunil Jacob, Dr. Mahib Singh. Next please. Various distinctive work has been done by various people in our batch. Dr. Mahib Singh, Dama Knife Surgery, Dr. Sailesh Lunawat, who's very active in the field of radiology at the national level. Dr. P. Agarwal, who's only one of the pulmonary specialists in the state. Dr. Gajen Chawla was a very good retinal surgeon. Few of us became medical teachers, myself, Dr. Sunil, Dr. Yashodhara Batham. Next. Presently, about 40 of us are in Bhopal, 5 are abroad. Many are in Bhopal, the rest of them are in this country. Next, please. We sadly miss one of our batchmates. I think we lost only one. And on behalf of all the batchmates, we pay our homages to Dr. Anuradha Rampal. Dr. Atul Kadani will present a small poem on behalf of batch 81. With due permission from the desk, Dr. Yashika and Dr. Sharma, respected teachers. जैसा डॉक्टर श्याम भाई ने भी बोला था, मॉनिटरेंस हो रहा है और उन्होंने बड़े ही मज़ेदार इसमें अपने बैच का काव्यात्मक प्रस्तुति करी थी। मैं आप लोगों के कुछ समय लूँगा। पुराना जो इतिहास रहा है स्वर्णिम, उसको अक्षरों में बांधने की, शब्दों में बांधने की कोशिश की है। अंग्रेजी में एक सेइंग है और मैं दोहराता हूँ, टुडे इज द फ्यूचर आई क्रिएटेड यस्टरडे। तो आज का दिन पुराने इतिहास के संस्मरणों को याद करके रोमांचित होने का है और उन्हीं को शब्दों में मैंने बांधा है। प्रस्तुत है सुनहरे पल धीर गंभीर सौम्य मुस्कुराहट के साथ दुलारते निहारते लगभग आगोश में लेते अपने सैकड़ों शागिर्दों को, जो अब भी उसे उतने ही प्यार से अधिकार से देखते थे जितने की शुरुआती छोटे सहमे से कदमों से नापा था इसके आंगन में। जब जी भरकर सर उठाकर भी न देख पाए थे उसे, फिर आगंतुक कदमों में जब स्थिरता आई और निरंतरता भी, तब इस दोस्ती का रंग दिखाई देने लगा जहूं और। बाहर पत्थरों के टीलों की बैठक सब समेटे अपने में, आवाहन भी, सुंदरता भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, और अंदर इमारत की भव्यता, शिक्षक से प्रशिक्षु और फिर चिकित्सक बनाने की अजीब सी कौतूहल भरी जादूगरी।
चौतरफा फैले गोलाकार गलियारों के बीच कई सीढ़ियों से साक्षात्कार करते हुए अनेकों नए विषयों को आत्मसात करते, समझते, जूझते, पढ़ते, मृत काया की रासायनिक गंध से सराबोर होते, कनिष्ठ वरिष्ठ गुरुजनों से हम कदम होते, सीखते, गूढ़ जटिल स्थिल किताबों में डूबते, उस इमारत के चप्पे चप्पे में सैकड़ों पलों को जीते, अनेकों सत्रों में आवाजाही करते, समय तोड़ता रहा, पंख लगाए। दूर लंबाई में फैली स्तब्ध शांति पुस्तकालय की किताबों की कतारों के बीच झुके हुए सिर, पढ़ते बतियाते, पढ़ने की कोशिश करते या समय को गिनते। कुछ दूरी पर सिर्फ खेल मस्ती, आमोद प्रमोद, ठहाकों और ढेर सी खुराफातों में व्यस्त बैठकों का खाका खींचते छात्र छात्राएं। मुख्य द्वार के मुहाने पर ट्रैफिक पुलिस की भांति बैठे लड़के शायद कॉलेज का पूरा दिन अपने इस जिम्मेदार पोस्ट पर निकाल देते और इन सब से को दिन भर निहारती बापों की शांत मूर्ति सिर्फ हल्की सी मुस्कुराती सी। कैंटीन में रोजाना की चौपाल, सालाना जलसों की बाट चौथा ऑडिटोरियम, सज्जित सुरभित विद्यार्थियों की सुरताल का साथी, गुलाबों से आच्छादित एक छत जहाँ की पहुंच थोड़ी मुश्किल, मार्चलू की महक एक परीक्षा लेती हुई, क्रीड़ा के आंगन इमारत के अंदर भी बाहर भी पिछवाड़े में भी, सुदूर ताल को एक पहचान देती पहरेदार भव्य इमारत, कई मुकामों की हमसफर, कई कहानियों की राजदार और छत के नीचे जरा सा नीचे वो दो कक्ष इम्तिहान के, जांच पड़ताल के, सेरन दौड़ाते, परखते, बुलाते, खिंचे हुए कदमों को मौके बेमौके कदम दर कदम आगे बढ़ने की मंजिल दिखाते, बेहिसाब भावनाओं को बेतरतीबी से संभाले वो गुलाबी इमारत, प्रदर्शनी, सेमिनार, परीक्षा, जलसे, हुड़दंग, मस्ती, हड़तालें, बैठकें, वाहन, शोरगुल, छात्र छात्राएं, गुरुजन, खेल, कला, सम्मान, समारोह, हॉस्टल्स के कमरे, ब्लॉक्स के रिश्ते, तालाब के किनारे, भोज कक्षों का अट्टहास, अस्पताल के वार्ड्स, क्लिनिक्स के किस्से, मरीजों की देखरेख, आकस्मिक चिकित्सा, इधर जा उधर जा, दिन और रात का पता कहाँ, कभी कुछ खाया कभी कुछ सोया। वो क्या दिन थे सबके इस इमारत में, ढेरों तस्वीरों का अनवरत सिलसिला फैला हुआ अर्धशती के कामयाब सफर में, बुलाती है सबको, बुदबुदाती है सबको, नहीं एक पल भी रुकी इस सफर में, वो गुलाबी इमारत जो सुनहरी हो चली अब, मुड़े पीछे सब हम चले उस सड़क पर जहां से शुरू थे कदम दर कदम सब, करें इसका वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। सभी को अभिनंदन, अभिवादन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों की प्रतिभाओं को सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। इतने लोग सुनने वाले बैठे हैं और हमारे बीच में शायद मेरे ख्याल से उसमें एक आदमी कोई दिख रहा हो है, दो, गुड। मुझसे कहा गया कि अपने बैच की उपलब्धियां गिनाओ। अब मैं सोचने लगा कौन कौन सी उपलब्धियां थी, प्रतिभाओं के बारे में बताओ। तो मैं सोचने लगा 137 पूरी अपने आप में प्रतिभाएं थी। और हमारे सीनियर बैच वालों ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इतने सारे बोल के गए, अभी तक आपने सुना नहीं है? हम लोगों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं करने को, जो कुछ करा अन्य गतिविधियों में लोग लिप्त रहे। गिनी चुनी प्रतिभाएं हमारे सामने थी जो आपके सामने थोड़े क्षणों में प्रस्तुत की जाएंगी और मुझे लग रहा है उसके लिए भी 4 मिनट बहुत हैं। मुझसे कहा गया कि उपलब्धियां गिनाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि उपलब्धियां होती क्या है। लाइट वही है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ की लाइट समान परिवेश में निष्पक्ष रूप से साधनों की समान उपलब्धता तथा नियमों की समान रूप से प्रतिबद्धता के पश्चात व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर यथा योग्य क्षमता व प्रतिभानुसार जो सफलता उपलब्ध होती है उसे ही उपलब्धि कहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसी उपलब्धि हमारे यहाँ किसी की नहीं थी। जो प्रारब्धता से नहीं अपितु प्रतिबद्धता से मिले, जो अनाय
सफलता को उपलब्धि की श्रेणी में रखा जाता है। मेरे ख्याल से ऐसी गिनी चुनी उपलब्धियों को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिनमें से व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय का नाम जरूर मैं सर्वप्रथम लेना चाहूंगा, जिन्होंने देश में ही नहीं अभी तो देश के बाहर भी हमारे इस संस्थान का नाम रोशन किया और ऊंचा ही नहीं बहुत ऊंचा उठाया है। उनकी कुछ उपलब्धियां अगर मैं कराने लगूंगा तो शायद पूरा हॉल खाली ना हो जाए। इसके पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही बहुत से पेपर और जर्नल्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उनके वही एकमात्र ऐसे हैं जिनके नाम लेने पर हमें अपने बैच में गर्व महसूस होता है, बाकी तो कहीं और बिजी रहते थे। इसके पश्चात दूसरा एक बहुत बड़ा सफलता का पर्याय जरूर मैं एक संस्थान को देना चाहूंगा जो आपके सामने है, चिरायु अस्पताल के रूप में। ये चिरायु अस्पताल 1992 में 40 बेड्स के साथ शुरू हुआ और 1997 में 100 बिस्तरों का उसने विस्तृत रूप लिया। और उसका नाम मैं इसलिए भी लेना चाहूंगा कि उस संस्थान में हमारे देश के एक नहीं 4 लोग उसमें कार्यरत हैं, जिनके आप चेहरे देख सकते हैं और जो सबके पहचाने हुए हैं। डॉक्टर अजय गोयनका, ब्लॉक वाइज देखें डॉक्टर तरुण राजपूत, डॉक्टर अनिल नायक और डॉक्टर अब्बास सलीम। और चिरायु अस्पताल की गिनती भोपाल की नहीं, लोगों ने ये बहुत बड़े दावे किए कि हमारे देश के लोगों के सबसे बड़े बहुत ज्यादा नर्सिंग होम है। मैं कहूँगा हमारे देश का एक ही काफी है। चिरायु नर्सिंग होम ने भोपाल नहीं अभी तो भोपाल के बाहर ही भोपाल के अन्य क्षेत्रों में भी जो उन्होंने आयाम हासिल किए हैं वो अपने आप में बहुत उपलब्धि है। और इसके अलावा हमारे देश में बहुत ज्यादा गिनाने लायक उपलब्धियां नहीं है और मेरे ख्याल से सुनने लायक बहुत लोग को उपलब्ध नहीं है। अब आने वाले अन्यों को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने को उपलब्धियां गिनाएं जो उनके पास है वास्तव में। धन्यवाद। Many of them are sitting here. We have loads of memories which are very difficult to summarize in 4 minutes. So we have prepared a parody to sum up our journey through Gandhi Medical College. And in this journey, I have deliberately avoided taking names as people have been doing because it is very difficult to incorporate each and everybody. हर एक की अपनी उपलब्धि होती है और ये संभव नहीं कि हर एक को हम उस पैरोडी में जगह दे पाते। इस पैरोडी का सार है हम सब मस्ती करते हुए इस कॉलेज में पढ़े, सीखे और निकल गए। वक्त का तो जैसे पता ही नहीं चला। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 83 बैच की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात। एडमिशन हुआ, सारे दोस्त बने, सारे मिलके चले। वीडियो इज नॉट एडमिशन हो चुका है, वीडियो चालू वो तो गाते चले, काम करते चले, मस्ताते चले। फिर एक दिन सेकंड क्रॉस में नहीं भूलती वो खौफनाक रात। मुझे याद है वो थी एक दर्दनाक रात। एक धुआं सा उठा जिसने सारे भोपाल को अपने आगोश में ले लिया। ये थी MIC गैस ट्रेजेडी। एक सेकंड सर, नीचे करते हैं।
कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स और वो भी बेनजीर कॉलेज के ग्राउंड पर, और बाहर जाना हो तो किराए की बस। तो हमारे बैच ने क्या किया, टीम के पीछे पड़े, सरकार से लड़े, बस चालू हुई ये बस। फिर श्रमदान किया, पत्थर भी फोड़े, कॉलेज ग्राउंड बना। इसके पहले कॉलेज में ग्राउंड नहीं था। एक फंक्शन किया, नाम स्पंदन दिया, सारे डॉक्टर जुड़े। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन था जिसमें पहली बार भोपाल के सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा किया गया, भले वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो, और सब एक ही फोरम पे आके बैठे, सबने एंजॉय किया। और उस फंक्शन की मेमोरीज हम सबके दिमाग में आज भी जीवित हैं। एंड आई एम श्योर जो भी लोगों ने ये फंक्शन अटेंड किया है, सबकी मेमोरीज में ये फंक्शन हमेशा रहेगा। ला 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 खुदा की कसम मजा आ गया, हर तरफ 83 बैच छा गया। छा गया, लेकिन बैच तो छाया, कॉलेज का क्या हुआ? अरे नहीं लल्लू, छाया तो कॉलेज है। अगर किसी स्टूडेंट ने या बैच ने अच्छा काम किया तो नाम किसका हुआ? कॉलेज का। अगर बैच का कोई डॉक्टर हायर स्टडीज के लिए देश या विदेश में गया तो नाम किसका हुआ? कॉलेज का हुआ। अरे ये कॉलेज ही तो असली कॉलेज है। ये तो हुई अचीवमेंट्स की बात। नाउ द सैड पार्ट, ड्यूरिंग दिस जर्नी वी लॉस्ट 2 of our friends, Dr. Sunita Anand and Dr. Pramila Sharma. We take this opportunity to pay our sincere homage to departed souls. So dear friends, our batch we think was a wonderful team. All boys and girls were always together for a good cause. On behalf of my colleagues, before I end today, I would like to thank the institution and all my teachers for their contribution in development of each of us, not only as a doctor, but also as an individual. So friends, 3 cheers for the GMC. Hip hip, hip hip. Thank you. प्रस्तुत हुआ हूँ, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारे पेज से आज यहाँ कोई और नहीं है मेरे अलावा। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ उपस्थित मेरा हर सीनियर, मेरा हर जूनियर मेरे साथ है, और ये पूरा काजी मेडिकल कॉलेज मेरे साथ है। बस आप इतना करें कि 4 मिनट में अपनी बात पूरी करें। सर, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं अंदर ये सोच रहा हूँ कि मैं 4 मिनट में मुझे क्या क्या बोलना है। मैं बोल भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। खैर, मैं शुरू करता हूँ बात वहाँ से। नहीं, हम हिंट दे देंगे, हम हिंट दे देंगे। जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उस वक्त की बात है, हम लोग जूनियर मोस्ट थे, और ये जो गेस्ट पीएचडी की बार बार जिक्र हो रहा है, तो हमसे जितने भी सीनियर थे उन लोगों को थोड़ी ना थोड़ी डॉक्टरी तो आती थी, लेकिन हम लोग ऐसे थे, हमें डॉक्टरी का डा भी नहीं आता था। लेकिन गेस्ट पीएचडी के टाइम हम लोग की पोस्टिंग लगाई गई। हमारे सीनियर्स ने बताया, भाई मरीज यदि ऐसे आगे कर रहा हो तो उसमें ये ड्रॉप डाल देना, यदि उसकी ये तकलीफ हो रही हो तो ये इंजेक्शन लगा देना। तो वी वर सरप्राइज्ड कि अपने देश में, अपने भोपाल में, अपने शहर में यदि कभी कोई ऐसी डिजास्टर हो तो डॉक्टरों की कितनी कमी होती है, जो हम जैसे नौसखियों को डॉक्टरी करना पड़ रही है। लेकिन कांपते हाथों से हम लोगों ने इंजेक्शन लगाए, और 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग अपने आप को बड़ा कॉम्पिटेंट डॉक्टर मानने लगे थे। तो ये गेस्ट पीएचडी की दास्तान थी, और यही हमारे बैच की दास्तान है कि आज यहाँ कोई नहीं है।
Now the next speaker. लोग वापस आने लगे। प्लीज स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट गो। सर हम लोग 85 बैच 140 स्टूडेंट का बड़ा खतरनाक बैच, जिसमें लोग देश से विदेश से आए, आते गए, कहीं ट्रांसफर लेके आए, कोई फर्स्ट प्रॉफ के बाद भी आए, तो बैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उस आने में ये हुआ कि आज फाइनली सिर्फ इतने ही आए, थोड़े से और आए थे, वो पहले जल्दी चले गए। हाल फिलहाल उपलब्धियों में अगर बात की जाए तो हमारे जो करंट 2-3 सीनियर बैचेस हैं जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब वो ग्राउंड बन रहा था तो हमारी का काम कौन सा बैच कर रहा था। ऑर्डर तो दे रहे थे, हमारी जो थी पत्थर उठाना और वहां से खंभे उखाड़ के गायब करना, और वो एक फाउंटेन कैपिटल प्रोजेक्ट वालों का वहां लगा था। गुड्डू भाई तुम्हें ने बोला था इसको रात में उठा के हॉस्टल में ले जाओ, तो ग्राउंड आपने बनवाया है, सही बात है। सारे अक्लमंद बड़े लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, और 32 लोग हम भोपाल में हैं। जो थोड़े से नकारे लोग थे वो कहीं दुबई गए, जो उससे ज्यादा नकारे थे वो 2-3 लोग यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और जो बिल्कुल ही बेहुदा लोग थे वो 11 करीब अमेरिका में इस समय। तो ये हम लोगों की कहानी है। और एक जो उसे उपलब्धि माने या कुछ, हमारा पर्टिकुलर बैच 85 बैच has the rare distinction of having 7 consultants working in this hospital. So 7 लोग हम लोग इस समय इस मेडिकल कॉलेज में एज कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं आउट ऑफ आवर बैच। एंड कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन भी पुराने बैचों ने गिना है। तो एक हमारे भी लिस्ट है छोटी सी, जिसमें धीरेन्द्र मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने MCH पीडियाट्रिक सर्जरी किया है और अब हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एंड HP राय डिड हिज MCH इन न्यूरो सर्जरी, और वो तो बहुत ही बड़ा लड़का, क्योंकि उसकी डिग्रियां मैं आपको सुनाता हूँ। उसने पहले DFM किया, उसके बाद MD पैथोलॉजी में गए, उसके बाद उन्होंने MS सर्जरी किया, और अब फाइनली MCH न्यूरो सर्जरी कर लिया है। तो पढ़ते ही जा रहे हैं वो, और बड़ा ढीला था वैसे, अदरवाइज कोई बात नहीं। DM हरिप्रसाद ने किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। एंड धीरू भाई जो है हमारे, आपको बताइए, पीडियाट्रिक सर्जन। एंड आवर बैच आल्सो हैज द रेयरेस्ट डिस्टिंक्शन स्टैंडिंग विद अस, भूपेंद्र, who established a 10-bedded hospital as soon as he was the intern. तो इंटर्नशिप में घुसे, उन्होंने सबसे पहले काम किया, अपना अस्पताल खोला 10 बेड का, और आज भगवान की दया से he is running one of the biggest hospital of Bhopal, LBS Hospital, which is 70 bedded and is now going to be 150 bedded in a month's time. So congratulations Bhupendra. हमारे बैच के एक बार मिशनरी जिन्होंने इंटर्नशिप में आज का नजारा समझ के अस्पताल खोल दिया। And finally we have obituaries. 3 of our batchmates are no more: Sapna Jasani, Samjhana Pandey, and Shyam Lal Navid. So our condolences to them. Thank you very much indeed. Thank you. शुरुआत में आप मुझे इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरे जो अभिन्न कलाकार रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र कुंवर, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और साथ में इसमें लता चतुर्वेदी। हमारे बैच की उपलब्धियाँ हैं वो 1991 में हमारा फर्स्ट PPG बैच था। हमने फर्स्ट PPG बैच दिया बड़ी कठिनाइयों के साथ, और उसमें हम लोग की जो मेन पोजीशन थी लगभग वही रही। दूसरा हमारा जो बैच था, अभी तक आपने देखा हमेशा लड़कियां अपनी क्लास में कम थी, हमारे बैच में 70% लड़कियां थी और 30% बॉयज थे। इसीलिए आज एक भी लड़की नहीं आई है, इसलिए हमको अपनी लाइफ पार्टनर को दूसरे बैच में ढूंढना पड़ा। इसलिए बाल कम हो गए। यस सर। और हमारे ही बैच में सबसे पहले हमने 1991 में सेंट्रल इंडिया के नाम से इंटर मेडिकल कॉलेज फंक्शन किया था, और उसमें हमने 21,000 का चेक दीन साहब को, कार्निवल का जो हमको प्रॉफिट हुआ था, दीन साहब को डॉक्टर राकेश भार्गव के हाथों से दिलवाया था। और
अब विस्तार में थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा, हमारे जो क्लासमेट्स हैं डॉक्टर साची कोशी, दीपा जैन, पीटू लाला, सुनीता बंसल, वंदना मिश्रा, जाकिर हुसैन, मीना नायक, दैट स्टेट्स, और यूके से डॉक्टर मनीष मल्होत्रा इज इन गल्फ, और जो भोपाल में हम लोग लगभग 20 स्टूडेंट्स जो अपने बैचमेट हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर नीरज राय, स्किन स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर वरदान हॉस्पिटल, डॉक्टर अनिल भार्गव, डायरेक्टर चरक हॉस्पिटल, डॉक्टर राजन क्षेत्रपाल श्री हॉस्पिटल, डॉक्टर राजीव शारदा हॉस्पिटल, डॉक्टर राकेश भार्गव नटखट हॉस्पिटल, डॉक्टर सब्यासाची गुप्ता शिवम हॉस्पिटल, एंड माई सेल्फ डॉक्टर रणदीप सिंह विद अमन हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, एंड स्टार्टिंग सून द फर्स्ट IVF सेंटर ऑफ भोपाल. Then the renowned among my batchmates in super specialists who are doing very well is Dr. Sunil Malik, neurologist, and other classmates like Abhijit Deshmukh, surgeon, Dr. Fanin Sharma, Dr. Rajan Khetrapal, Ajay Gupta, physician, Dr. Madhumita Mandal is here in Bhopal. She is in IS. R.P. Patel, Sandhya Rajgir, Namrata Bore, and among the इन प्रोफेशनल टू दिस इंस्टीट्यूट हमारे जो क्लास के टीचर्स बने हुए हैं डॉक्टर अरनीत अरोरा, डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल, डॉक्टर नताशा शिंदे एंड डॉक्टर मंजुला गुप्ता एंड डॉक्टर सुरेंद्र रायकवाल इसी कॉलेज में टीचिंग प्रोफेशन में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं. और इंदौर में डॉक्टर वीना ऐशिकर और डॉक्टर प्रमिंदर सिंह ठाकुर, ये मेडिकल कॉलेज इंदौर में है. और अब मैं चाहूँगा राकेश भार्गव की 2 शब्द बोलेंगे. हेलो, लड़कियाँ क्यों नहीं आई? हमारे बैच में आ जाए. हमारे बैच जितने भी लोग हैं 2 बजे ऑनवर्ड्स ग्रीनवुड कंट्री क्लब में 18 तारीख संडे को रखा है. प्लीज इन्फॉर्म देम. रोमांचकारी एक अद्वितीय बैच, जिसकी विशेषताएं अगर हम बताने को बैठे तो समय बहुत कम है, किंतु फिर भी प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भोपाल में ही जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे साथीगण धूम मचाए हुए हैं वे हैं एनेस्थीसिया के क्षेत्र में डॉक्टर अंजू वर्मा, अनुराग यादव, गायनी के क्षेत्र में प्रतिभा शाका, वंदना अग्रवाल, कविता सक्सेना, इन सबके आगे डॉक्टर लगेगा. पीडियाट्रिक सर्जरी में अश्विन आपटे, पीडियाट्रिक मेडिसिन में डॉक्टर राकेश सुखेजा, NRP में मनीष पाटिल, DSL में यश राव, ऑप्थेल्मोलॉजी में वर्षा कांत, स्किन BD में अपूर्व जैन. हमारा ये पहला ही बैच था जो कि ऑफिशियली पल्स में एम्स गया और जहां विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किए. So we all are the tradition makers. और मैं ये बता दूं कि हमारे बैच का जो टॉपर है डॉक्टर नीतीश नायक, जो कि आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के पर्सनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी प्रत्येक धड़कन पर अपनी पैनी नजर रखते हैं. और उन्हें बुलाने के लिए अभी हमें PM से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी. ये भी एक हमारा बड़ा अचीवमेंट, हमारा नहीं अपन सबका. हमारे ही बैच के कई लोग हैं जो सुपर स्पेशलिटी में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं, जैसे डॉक्टर नीतीश नायक DM कार्डियोलॉजी, एम्स में अभी पदस्थ हैं. अश्विन आपटे MCH पीडियाट्रिक सर्जरी, रिनाउंस्ड सर्जन. हेमंत खाडीकर MCS न्यूरो सर्जरी. मोहित खिरवट DN नेफ्रोलॉजी. इसके अलावा हमारे कुछ साथीगण हैं जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर रखा है, और इनमें उल्लेखनीय है कर्नल सुधीर पसरीचा, जो कि अभी सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर पदस्थ हैं. मेजर कुलदीप आस्था, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद में पदस्थ हैं. मेजर महेश जैन, जो इस वक्त श्रीनगर में आतंकवादियों से जूझ रहे हैं. और इन्हीं लोगों और इन्हीं जैसे GMTC के कई पूर्व छात्र, जिनके कारण आज हम एक सुरक्षापूर्ण माहौल में अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं. वंदे मातरम. साथ ही हमारे कई साथीगण जो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भी काफी अग्रणी महारत हासिल किए हुए हैं, जिनमें एक है मनीष पाटिल, अश्विन आपटे, अंजू वर्मा, अनुराग यादव,
अरविंद चौहान। इसके अलावा कई जो हमारे ऐसे हैं जो विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वे हैं अमित त्रिवेदी, संजीव स्वरूप आदि। और यह जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि आज जो आप फिल्मी पर्दे पर इतने खूबसूरत से स्लिम एंड ट्रिम हीरो हीरोइन, स्लिम एंड ट्रिम हीरोइन और मस्कुलर हीरो जो देख रहे हैं, वे हमारे ही बैच के डॉक्टर विवेक निगम की देन है। आपने शो में इनको देखा होगा, नेशनल इंटरनेशनल फेम प्राप्त कर चुके हैं और शेखर सुमन के प्रोग्राम में रूबरू हुए हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई करते क्या है, इतना बॉलीवुड में धूम मचा रखी है, तो उन्होंने कहा कि बताया उन्होंने कि वे सोयाबीन की गोलियां और पाउडर खिलाकर पूरे बॉलीवुड को चूना लगा रहे हैं। फिलहाल हमारे बैच की जो चिकित्सा जगत में साख है, उसे देखकर ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आने वाले समय में हमारे कई साथी, आप देखेंगे हमारे कई साथी, इनमें से कई साथी पद्मश्री, पद्म विभूषण और वीर चक्र से विभूषित होंगे। धन्यवाद। और कुछ मेरे शायद मैं भूल रही हूँ तो एक आध उपलब्धि किसी को याद आ रही हो तो बताएं। And my anticipation for this event, which they haven't shared, but anyway, I wish them all the best, and I wish my college all the best and a very bright future. I love this college, and whatever we have done is because of this. Okay, thank you. Thank you. Everybody who is still waiting for somebody to speak and usko झेल ले. I'm very thankful to all of you. And as far as the people have counted upon the performances, achievements of their batches, I have to say one thing only, that our batch has not been an ordinary batch. It has been below ordinary. And in case they have been extraordinary. It's an extraordinary. It's an extraordinary batch. And only one person is sufficient to represent everybody. No, we have some more representatives also. Sitting at the back benches, they have always been there. And they have always been back benchers. And first of all, let me pay my homage to Dr. Vivek Maheshwari, one of our batchmates, a topper in the PMT batch. However, he is no more. And our batch continued with the same tradition of having 2/3 girls and 1/3 boys, with 97 number of girls out of 150. And as earlier, we also continued with the tradition of having the city and non-city traditions in Titans and Pentagons. And out of those who were not capable of getting into pre-PGs as usual, have gone to US, and 11 number of them are there. And rest of them who have made their fortunes in India, a very less number are at Bhopal, about 10, and rest of them are spread about in all throughout the country. Our batch has one very fine plastic surgeon at Bhopal, Dr. Anand Kale, who has come back to Bhopal in spite of having several opportunities at Ahmedabad and Mumbai, but he decided that he will come back to Bhopal and serve the people here. Thank you. मैं चाहूँगा अपने पूरे बैच के तरफ से डॉक्टर अशोक आर्या, इसके अलावा कुछ हैं जो कि बाहर हैं, जैसे संजय राजदेव, संतोष वर्मा, डॉक्टर पंकज। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिन्होंने सुबह ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे आनंद यादव, नितिन अग्रवाल एंड मोहन रामचंदानी, संदीप सक्सेना, संजय राजदेव एंड डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी। इसके अलावा कुछ लोग जो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे मैं, डॉक्टर जयंती, डॉक्टर भावना शर्मा, डॉक्टर संजय धावले। अभी और उपलब्धियाँ हो सकता है कि हमको और मिलेंगी। आप सीनियर लोगों की और गुरुजनों के आशीर्वाद से हमें वो ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ इस चीज़ से मैं अपने चीज़ को समापन करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। And looking down the memory lane, I have a feeling of both nostalgia and elation. Our batch has been the most enthusiastic batch of the college. We have been the trendsetter right from the beginning. We created history when we won the Peter Lynn Trophy at All India Institute of Medical Science in 1995. This Peter Lynn Trophy is awarded for the best all-round performance in extracurricular activities among all the medical colleges of India.
We organized the patient camp at Balkeri and served the rural population for 10 days. We did a close analysis of the common health problems of the villagers. We organized many Nukkad nattaks and made several posters to make the general people aware of the common health problems and how to deal with them. In spite of the busy schedule, we could organize a trip to Pachmari and we had a lot of fun there. We organized the college function as Waves 96 and it was supposed to be one of the best functions ever organized by any batch. These are a few photographs from the functions. We had a lot of fun at the college functions. Then came the government rule in 1998 of compulsory rural posting for 3 years after MBBS. Our batch headed against this bizarre government rule and we won it. This is Smriti 93 was a farewell publication from our batch. It was an endeavor to keep in touch with everybody so that we can share and celebrate each other's achievements. Barring a few, all have done post-graduation from our batch. Some have done. Our batch had outstanding talents. We had outstanding painters, sportsmen, singers, dancers, leaders. The rest of us who, other than me, who have not been here, are busy achieving in their respective fields. They are working hard, and so that 25 or 50 years hence, 4 minutes would be very less to recount these achievements. However, in short, of the 150 students, more than 126 have already procured seats in the postgraduate entrance examination, and most of us have already completed that successfully. And in this short while, one of us has already secured a DM oncology seat, and in the coming 1 or 2 years, we'll see more of our friends doing the same. Now, out of the batch, 5 of us have settled abroad, and they are doing very well, and 3 of them have already secured fellowships in their respective fields. 3 of us have come back to our parent institution as faculty. Dr. Rakesh Singh Jagat in the Department of Medicine, Dr. Rajesh Tikkas in Pediatrics, and myself in Obstetrics and Gynae. So what better way to serve our alma mater and to carry forward this torch which Sir and all the other esteemed teachers have handed over these years. I hope that in the Platinum Jubilee and in the Diamond Jubilee we would have many more achievements of our batch. Thank you. Thank you. We are hardly 5 of us. Can we all come on the stage? I think we'll have no audience after that. How do we have an audience? So people live, people die. Some say hi, some say bye. Others can forget GMC, but how can we? Those who may perceive that the memories we have of this institution may fizzle out, I would like to say that the Sufis used to say, Loki Panjvele te Asi Harvele. So we are the Sufis of Bhopal and GMC is in our blood, in our veins, in our arteries. Today, although few of us are here, but still we can't forget the people who have left us for the heavenly abode. Prashant Chokekar, Saurabh Meher and Chandreshwika Kodia, we really miss you. So the 1996 batch, we had the privilege of a few unique experiences. We had a pair of twins, 2 Sardars after an interval of 3 years, 2 strikes, and we could manage a convocation after 20 years. So at this stage, as ma'am said, they are 11-year-old and we are just 9-year-old. So we don't boast of any DMEs, deans, professors, international awards from our batch. But we promise that keeping with the tradition of our super seniors and seniors, we definitely aim to achieve something. Just be true to your alma mater. Thanks a lot. Thank you. Next is Dr. S.N. Gole. Is he here? मैं भी आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नंबर आने। जिन लोगों का नाम सबसे आखिर में आ रहा है उनको काफी वेट करना पड़ा, इसलिए आप लोगों को मैं आपको अधिक से अधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ।